Okay, so Rabi crops we just discussed. Please continue further. So India objects to investment facilitation talks at WTO. So it strongly objected to the efforts of certain countries to push a proposal on investment facilitation and saying कि जो ये agenda है this falls outside the mandate of the global trade body and cannot be deliberated in formal meetings. तो WTO World Trade Organization का main objective यही है कि free trade को promote करना, जो trade distorting practices हैं उनको allow ना करना. तो यहाँ पे investment facilitation की बात हो रही है which is not directly related to trade. तो ये बोला जा रहा है. So this cannot be taken up by WTO. So this is the thing I would like to reiterate कि investment facilitation for development which supposedly facilitated investment did not pertain to multilateral trade relations. इसको negative mandate बोला जा रहा है, did not allow the members and desirous of to pursue it in a multilateral forum. So G20 presidency and India's rising economic might on the world stage. So कौन से areas में बात कर सकते हैं? Growth chart की बात करें, हम generally भी बोलते हैं कि even growth momentum India का या resiliency of our economy given the global economic situation. So India का GDP growth rate forecast जो है it is somewhere around average अगर हम बोले तो 6.5% है. Different forecasts from RBI, IMF and Asian Development Bank. GDP growth in top 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज 2023 में बात करें सो जर्मनी का नेगेटिव में था तो दिस कैन बिगिन वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी इवन से कि यूरोजोन इज इट रियली हेडेड टुवर्ड्स रिसेशन और नॉट चाइना इट इज कैन से 5 इंडिया का 6.3% जापान इज 2 यूएस इज 2.1% तो जीडीपी इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दिस इज इंपॉर्टेंट एफडीआई 2022 चेंज की बात करें तो यूएसए में इट इज नेगेटिव मतलब FDI has grown by -26%. चाइना में 4.4 एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इट इज 8.9%. ऑस्ट्रेलिया में इट इज 195%. दिस इज वेरी ह्यूज और ब्राजील सो वी कैन से ऑस्ट्रेलिया ब्राजील और इंडिया. So IT firms they turn to Australia as US market slows down. So here we are seeing कि इंडिया को हम कैसे इसे प्रमोट कर सकते हैं एज अ रिलायबल डेस्टिनेशन फॉर द IT firms. So amid the muted growth in the North America largest tech spender, top IT companies जैसे TCS, Infosys, HCL Tech, they are increasingly focusing their focus to Australia. और अभी हमने FDI की भी बात करी तो in that also ऑस्ट्रेलिया में 195% इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ FDI. तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम बात कर सकते हैं कि इंडिया कैन सी कंपटीशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं कंट्रीज आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफाइंग their locations or their investments apart from China. सो वेस्टर्न वर्ल्ड में ओवरऑल हम बात कर सकते हैं जो मार्केट डिमांड है ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रहा है इवन इन यूरोप. So the focus of World Trade Order is now shifting more towards Southeast Asian countries. You can say South Asia. So technology and governance synergy between them, we can say, promotes good governance, increased efficiency in governance. Government is making maximum use of technology, digitalization, e-governance, hassle-free delivery, and to the services. For the citizens, capacity building programs enable us to be ready for that. So capacity building programs or help करेंगे in implementing this via the help of technology. So economists as detectives. So Claudia Goldens, who won the Nobel Prize in Economics this year, tells us how economists unearth the knowledge from data. Data जो है उसको आप
कैसे इन्फ्रेंस उसमें से निकालते हो, तो उस चीज की बात हो रही है. सो सिंस एडम स्मिथ्स टाइम इकोनॉमिक थ्योरीज ऑलवेज they've not always been developed by sifting through data. However, which contemporary economists they might be regarded as detectives in according to her perspective. So that's why I can say that the role of economist can become important. Statisticians, we can say they aid in this entire process. So can an economist or statistician who works with the data be related to a detective due to a pursuit of extracting the truth hidden therein? So इस चीज की हम बात कर सकते हैं. So what do we mean by this sledgehammer approach? So RBI's crackdown on alternative investment funds is well intentioned, but practicability of the extreme move that is debatable. तो यहाँ पे can you just explain me कि RBI ने what regulatory step और उसके पीछे reason क्या है step लेने का? करुणा और प्रवेश. सो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अगेंस्ट जो आरबीआई ने रेगुलेटरी स्टेप ये लिया है कि इट वाज फाउंड कि जो डेट कंपनीज है जिनके पास डेट ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स पैसा उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कंपनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, जिनकी डेट बहुत ज़्यादा हाई है. तो इस मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखा जा रहा है कि एक तरीके से ये इनडायरेक्टली उन कंपनीज के लिए एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो रहा है, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, वो उस पैसे को अब कहाँ कैसे यूज करेंगे वो एक प्रॉब्लम है. तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए आरबीआई ने रेगुलेटरी स्टेप इंट्रोड्यूस किया है. सो रॉबर्ट सोलो मॉडल इकोनॉमी में बात करते हैं. सो द नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट हैड हिज फिंगर ऑन द राइट स्विच व्हेन ही फाउंड दिस थ्योरी ऑफ growth being ultimately tied to technology. So रॉबर्ट सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में. सो ही हैड नॉट क्वाइट कंसेप्चुलाइज्ड वाज द डेंजर्स ऑफ हैविंग टू मच टेक्नोलॉजी. सो उन्होंने बात करी कि टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, बट एक्सट्रीम में या उसके जो कंसर्न्स या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं वो ये नहीं बात की कि ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी की वजह से भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं. लाइक जैसे आज कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. So here we are celebrating 2023 is India's newest World Heritage Site, Road to History by the Stunning Geography. So in these pictures we are having the Hoysaleshwara Temple, beautiful expression sculpted in stone. So stone sculpting जो हम बोलते हैं soft stone use किया गया है, तो उसमें sculptures बहुत intricately they are refined. And Keshava temple is there, Somnath Pyramid is located, then Chinnakeshwar temple in Belur. So stunning geography, they're located, all located in Western Ghats. So these are the pictures also. So they are all example of the Dravidian temple architecture. So one woman member of the Monetary Policy Committee, we can remember her name also, Ashima Goel ma'am. ये हम बात कर चुके हैं फेड रेट कट्स. अभी बिलीव यही है कि 2024 में दे माइट स्टार्ट विद द रेट कट साइकिल. COVID cases 640 is the number as of now. JN.1 variant. Forex reserves at near 2-year high. हमने बात करी थी कुछ दिन पहले they were at $606 billion. Now they stand at $616 billion. तो 2-year high के लेवल पे है. एंड ऑल टाइम हाई अगर हम बात करें कि January 7 2022 में they were around $632 billion. So this is also one of the important macroeconomic indicators of the economy, and which would also help in strengthening the Indian rupee. So forex reserves के components can list down quickly. Oshik.
यस मानसी। What are the components of forex reserves? एसडीआर हो गया, रिजर्व ट्रांस हो गया, उसके बाद फिर गोल्ड और फॉरेन करेंसी Foreign उसका currency. एसडीआर। हाँ। ठीक है. हम्म। We can take up the Hindi newspaper now. Okay, Divya, Yes, Mansi. you can start with this. यहाँ पर हरित ऊर्जा के बेहतर विकल्प हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को लेकर जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिली है, उसके रिगार्डिंग कहा गया। अगर हम इसकी बजट की बात करें तो 17,490 करोड़ आवंटित किए गए हैं, और इसके लिए उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम, स्टील, परिवहन, इन सभी के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा, ताकि जो जीरो नेट कार्बन इमल्शन है उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट है उसको भी किया जा सके। अगर हम इसमें इकोनॉमी के टर्म में देखें तो 2030 तक जीवाश्म ईंधन की आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत की जाएगी, अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें कि कहाँ कहाँ पर बढ़त हो रही है, तो भारत के जो उर्वरक और रिफाइनरी उद्योग है उनमें अमोनिया बनाने के लिए या मेथेन बनाने के लिए 60 से 70 लाख टन हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती है, जो 2050 तक 280 से 300 लाख टन का होने का संभावना रखी गई है। तो उसके ऊपर देखा जा सकता है कि 66% जो हाइड्रोजन है वो हमें जल से प्राप्त होती है। तो किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट देखा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस को जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जाए। इसमें मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो COP28 में बात उठाई गई थी कि किस तरह से मीथेन का जो इमल्शन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो मीथेन का इमल्शन होता है वो फसलों से देखा जाता है। तो उसके ऊपर क्या विकल्प होंगे, किस तरह की नीति भारत द्वारा अपनाई जाएगी। तो इन सभी के लिए देखा जा सकता है कि 2050 तक जो हाइड्रोजन इस्तेमाल की विधि है उसको 10 गुना तक बढ़ाने की अनुमान लगाया गया है। तो इसके द्वारा हम स्वच्छ हाइड्रोजन, जो नवीनकरण ऊर्जा है, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, जिनका हाइब्रिड ऊर्जा के माध्यम से जो टारगेट्स है उनको पा सकते हैं। ओके, ले लो कल्प मेधा। जीवन व मनोरंजन का स्थल है। जीवन ना मनोरंजन का ना स्थल है और ना ही आंसुओं की खान। जीवन एक संवेदना है। टॉलस्टॉय। टॉल्स्टॉय। बोलो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? तो यही बोला कि ना तो खाली एंटरटेनमेंट के लिए बोल सकते हो, ना ही ओनली नेगेटिविटी या रोना या अफसोस मनाने के लिए। संवेदना मतलब होप, आई थिंक संवेदना को होप ही बोलते हैं, या दिलासा देना आई थिंक। संवेद सिंपैथी, हाँ। सिंपथी। हम मतलब कि तो बैलेंस वही तरीके से, हम्बल तरीके से आप बैलेंस करके चलो। जो आपकी मिस्टेक्स हुई है उससे सीख के, लर्निंग्स के थ्रू आगे बढ़ते जाओ। एंड एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे यही बात हो रही है कि कोई एक्सट्रीम चीज को आप लाइफ नहीं बोल सकते हो। यस मानसी। बोलो यहाँ पे क्या पिक्चर में बोलना है आपको। बैंकुटम में वो है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामग्री दी जा सकती है। तो ये इसका नाम बता सकते हो? प्रचंड हेलीकॉप्टर था नहीं, आई थिंक ये या प्रचंड किस? हेलीकॉप्टर नहीं है। ये रुद्र है शायद, आई थिंक। HCL जो एक तरह से रिहैबिलिटेशन में काम आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। हम्म। तो यहाँ एक टर्म यूज करी गई है कि अच्छा, चिल्लाई आई कला। थिंक तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी कैन डू दी समराइजेशन क्विकली एंड देन एंड दिस सेशन। सो यू कैन स्टार्ट विद द समराइजेशन। पॉलिटी में हमने गवर्नेंस की बात की थी कि EDFC के माध्यम से किस तरह से कॉरिडोर्स को बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स की कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और
किस तरह से जो स्किल्स है उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा था ग्रैप जो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, उसकी जगह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को किस तरह से अप्लाई किया जाए। और जो लोकसभा में लेजिस्लेचर में जो एमपीज को डिस्क्वालीफाई किया गया है उसके रिगार्डिंग बात की थी कि जो स्पीकर होते हैं और जो लोकसभा राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उनके पास जो पावर्स है उनको किस तरह से यूज किया जाता है, तथा किस जो पार्लियामेंट की कार्यवाही में जो किस तरह से उनका निलंबन किया जा सकता है। तो इन विषयों पर पॉलिटी में हमने चर्चा की। Regarding the science and tech part, we discussed about the Akash surface to air missile, then Rudra helicopter, HAL, Tejas, HAL, uh, Prachand, etc. Then the issue of the Red Sea, regarding the various separatist group, and also the important concept says donkey route, that is entry illegally into the US from Mexico, Canada, and from the Latin America. Mansi. ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एग्रीकल्चर जो आज हमने बात करी, सो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्टली शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. सेकेंडली इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सप्लाई चेन एंड बिल्डिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज. थर्ड इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ये इंपॉर्टेंट एरियाज एग्रीकल्चर ओवरऑल अगर हम इन शॉर्ट बात करें. ब्लैक स्वान इवेंट्स जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, प्लस उनका जो इम्पैक्ट होता है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो ऐसे इवेंट्स को हम ब्लैक स्वान इवेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट COVID-19 एंड so these are important topics from economy. Prerna? Okay, so there's this one topic about education where we talked about the supplementary textbook on Bhagavad Gita वाली news थी, and here we talked about the past 10 years में जो हुआ है. तो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस, देन डिजिटलाइजेशन, लाइक प्रथम की बात हुई थी, डिजिटल ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द वेरियस एप्स लाइक दीक्षा एंड ऑल, एंड ऑल्सो टीचर ट्रेनिंग जो सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं फॉर देयर ओन एनहांसमेंट एंड अपडेशन, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. दैट्स ऑल. Okay, Mansi, you can conclude. Okay, thank you so much for joining us on Ansarkari. You can subscribe to our channel for regular and detailed analysis videos.